So today we'll start with a very important topic, which is normal approximation to binomial. Binomial याद है बेटा सबको? What was binomial? Binomial क्या था बेटा? Tell me. नहीं क्या था कि you have n independent experiments, trials, n independent trials. Okay, so we were looking at उसमें each trial was resulting in a success and a failure with a probability p and 1 minus p, and x was number of successes. यही था बेटा बाइनोमियल. सबको क्लियर है ना? Was it a discrete random variable or continuous? Discrete था. It was discrete. So can you see the plot on the left hand side? यहाँ पे मैंने this is, suppose I have an experiment which is tossing a coin, tossing an unbiased coin 100 times. Okay बेटा, unbiased है तो what will be this is a binomial process. If you toss a coin 100 times, each coin can result in a head and a tail. Suppose head is a success for us. So what will be the mean value of number of heads? 50. So जो ग्राफ है, फॉरगेट अबाउट दिस सॉलिड कर्व, जो कर्व मैंने बनाई है, क्योंकि ये डिस्क्रीट है तो हम क्या करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे. हिस्टोग्राम बनाया हुआ यहाँ पे मैंने. दिस इज 50. 50 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? What will be the probability of x is equal to 50? कैसे कंप्यूट करेंगे बेटा? ऐसे तो ना, what is the probability x is equal to 50? That was 100 c 50, right? p 1 by 2 raised to power 50, and failure की probability 1 by 2 raised to power 100 minus 50, that is 50. So ये 50 की probability है, ये 51 की है, ये 52 की है, 53 की, and so on. Okay, can you see this histogram is for my binomial distribution. Now if I make now this solid black curve is normal distribution with mean is equal to NP, 100 into half. NP was the mean of the binomial distribution, and sigma is equal to, what was standard deviation for binomial distribution? Anybody? NP into Q, right? So that is N is 100, half into half, so that is 10 by 2. So this is a normal distribution curve which I have plotted using mean is equal to 50 and sigma is equal to 5.2. Can you see? We can very easily approximate the binomial distribution with the normal distribution here. Can you see that, beta? We can see that because what we are going to do for calculating the probabilities in binomial distribution, we are going to find the area under the curve. So you can see that area under the binomial, that histogram is almost same as area under the curve, right? So when p is half, so we note it from here, when p is half, we can very easily approximate binomial distribution, क्योंकि p is equal to half मतलब पूरी सिमेट्री होगी आपकी, और नॉर्मल में भी सिमेट्री होती है, राइट? सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b, बाइनोमियल का कैसे लिखते थे नोटेशन? x and p with normal distribution
1 माइनस पी। किसी को डाउट बेटा इसका मैं आपको एनालिटिकल प्रूफ नहीं करवा रही क्योंकि वो दैट इज हार्ड, बट ग्राफिकली यू कैन अंडरस्टैंड राइट। When can we approximate a distribution with another distribution? जब उनका PDF सेम होगा, almost same होगा, because we are talking about approximations. So what I am saying here is, whenever you have P is equal to half in your binomial distribution, you can always replace that binomial distribution with a normal distribution whose mean will be NP and standard deviation will be square root of N into P into 1 minus P. Is this thing clear? P is equal to half ही क्यों? क्योंकि in that case you have perfect symmetry, ठीक है, बाइनोमियल के केस में सिमेट्री होगी पूरी, क्योंकि हाफ हाफ की प्रोबेबिलिटी है सक्सेस एंड फेलियर। किसी को डाउट इसमें? इस केस में देख लो बेटा एक बार, अगर डाउट है तो टेल मी। ये सेकेंड फिगर विल डिस्कस लेटर, मैंने अभी फर्स्ट फिगर डिस्कस किया है। आई हैव प्लॉटेड एन हिस्टोग्राम फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ नॉर्मल कर्व। So this is the result we have, that when P is half, you can very easily approximate binomial distribution with normal distribution, this. So I can write here that binomial x and p is when p is close to half, exact half ना भी हो, is n x n p square root of n p 1 minus p. क्लियर है बेटा सबको? जो लोग अभी आए हैं बेटा, वी आर डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। कल हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। टुडे वी आर लुकिंग एट हाउ वी कैन अप्रोक्सीमेट a binomial distribution with a normal distribution. So here I have taken an experiment where we are tossing a coin 100 times. उस केस में probability of success will be half. तो ये जो हिस्टोग्राम बना है वो बाइनोमियल का बना है, और जो सॉलिड वाली ब्लैक कर्व है दैट इज फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन इज सेम एज मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन which is NP, which is 100 into half, that is 50. Okay, so we can see that these two have almost same area under the curves. Okay, so it means that we can say whenever P is close to half in binomial, you can replace binomial with normal. Clear बेटा? हाँ, तभी तो फॉर एग्जाम्पल सपोज आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाइनोमियल के केस में। ओके, सो लेट मी टेल यू इन दिस केस, सो वी हैव दिस, आई हैव x इज माय बाइनोमियल। ओके, सपोज आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू से 52। ओके, सो दैट शुड बी एक्चुअली ये 50 है, 51, 52, दिस एरिया ना, दैट शुड बी, क्योंकि यहाँ पे 1 है, विड्थ 1 है, राइट, दैट शुड बी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब मैं क्या करूंगी इसको, आई विल अप्रोक्सीमेट विद ये जो इतना एरिया है 51, ये सेंटर में है ना, तो मैं क्या, 52 सेंटर में है, 51.5 से लेके z मान लो नॉर्मल है, 52 सेंटर में होना चाहिए 52.5, इतना जो आपका नॉर्मल कर्व का एरिया है वो ले लो। समझ रहे हो बेटा? नहीं, एग्जैक्टली इजी तो है, बट द प्रॉब्लम इज कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ही हो। तो विल सी मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ी है वो नॉर्मल से अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे। ओके, तो जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, उसमें आप चाहते हो कि हम अपनी अप्रोक्सीमेशन यूज करें, एक ही हमारे पास कोड हो जो सबके लिए वर्क करे। ओके, so I'm not saying कि normal is easier, I'm just telling you you can approximate binomial with normal.
ओके हो सकता है बाइनोमियल इजी हो, बट देन वी हैव डिफरेंट टूल्स. वी वांट टू हैव वन टूल विच कैन हैंडल ऑल द सिचुएशंस. ओके बेटा, गॉट इट? Is this thing clear beta? So whenever p is half, you can always approximate your binomial with normal distribution. Now when p is not half, when second case is when p is not equal to half, उस केस में क्या करना है बेटा आपने? उस केस में as n increases you will have a good normal approximation. Can you see here? This is n is equal to I think 5 and this is n is equal to 20. P इसमें शायद P is 1/4 है शायद. So can you see when n increases the curve will be more symmetric. जब n increase होता जाएगा you will have a better binomial normal approximation for binomial. So whenever p is not half, in that case we have binomial can be approximated with normal when n is very large. ऐसा हमने पहले भी किया था ना बेटा? पहले क्या अप्रोक्सीमेशन की थी आपने? क्या अप्रोक्सीमेशन करी थी एनीबॉडी? When n was very large, you can approximate your कौन सा वेरिएबल विद व्हाट वेरिएबल? बाइनोमियल को किससे रिप्लेस किया था? पॉइसन से या उल्टा किया था? पॉइसन को बाइनोमियल को पॉइसन से किया था, राइट? तो यहाँ पे भी when p is not equal to half, in that case जैसे ऊपर वाले केस में we did not put this condition that n should be large. When p is half, you can always approximate your binomial with normal. But when p is not equal to half or not close to half, then you can approximate when n is very large. Is that okay, beta? Not always. And also here you should write. Also here you should write p should not be very close to 0 or 1. क्यों बेटा? क्योंकि अगर p very close to 0 हुआ तो सिमेट्री का चांस ही नहीं है. p very close to 0 मतलब आपकी कर्व ने बायस्ड होना ही होना है. very close to 1 मतलब आपकी बाइनोमियल की कर्व ऐसे बनेगी जितना मर्जी बड़ा आप n ले लो. So in that case you cannot approximate your binomial with normal. Clear beta? So when p is 0 or 1, this is for p is equal to 0, in that case your binomial will be left biased and this is p is equal to 1. In that case you have a right biasness. You cannot have a symmetry. So normal से approximate तभी कर पाओगे जब symmetry है. Okay? So we have two cases. Either p is half, in that case you can approximate binomial with normal, or when p is not half, then you can approximate binomial with normal provided n is very large and p is not very close to 0 or very close to 1. When p is very close to 0 or very close to 1, you can never approximate a binomial with normal. नींद आ रही है यार, क्या हो गया? सो रहे हैं? आपको कह रहे हैं सोना नहीं है? ओके बेटा? So now, so अगर मैंने suppose, now let us suppose if you have approximated binomial with normal, in that case अगर आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये आपका नॉर्मल है, x is
x आपका डिस्क्रीट था, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे एरिया? a माइनस 0.5 से b प्लस 0.5। एग्री? जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। और अगर x लेस देन इज इक्वल टू b है, मतलब b प्लस 0.5 की लेफ्ट साइड की जो भी एरिया है, और अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू a है, मतलब a माइनस 0.5 से शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि बाइनोमियल जो है वो डिस्क्रीट है, उसमें आपके पास यू हैव हिस्टोग्राम्स वेयर यू हैड रेक्टेंगल्स ऑफ विड्थ 1, तो आप उसके लेफ्ट से स्टार्ट करोगे। समझ रहे हो ना बेटा? बाइनोमियल आपका डिस्क्रीट है, नॉर्मल आपका कंटिन्यूअस है, तो कहां से एरिया स्टार्ट करना है? हिस्टोग्राम में हमेशा मान ही लेते हैं बेटा, 52, 53, 54 ऐसे तो लेते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है? कुछ और भी ले सकते हैं, बट इन दैट केस फिर देन आप हाइट्स चेंज करते हो, सो दैट टोटल एरिया शुड बी 1। बट प्रोबेबिलिटी के केस में जब आप पीडीएफ बनाते हो तो नीचे हमेशा मान लेते हो, ओके? और अगर मुझे एक सिंगल पॉइंट की चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a, क्योंकि बाइनोमियल डिस्क्रीट है, देन वी कैन टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंगल पॉइंट। तो उसके लिए आप a माइनस 0.5 से a प्लस 0.5 तक जाओगे। सो दिस 0.5 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 0.5 is called continuity correction. Continuity correction हिस्टोग्राम में जब भी आप बनाते हो रेक्टेंगल्स दे आर ऑफ विड्थ 1 मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके बेटा, सो नाउ लेट अस जस्ट सी कि अप्रोक्सीमेशन कैसे वर्क करती है। सपोज आई हैड this is you are tossing a coin 15 times, so suppose you have like 15 trials, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.4 एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 0.6, राइट? एंड so the corresponding, this is the binomial distribution, the corresponding histogram is here, so what will be the probability that my success are between 7 to 9? बाइनोमियल से कैसे करेंगे बेटा इसको? 7 to 9 मतलब आप ये वाला ब्लू वाला 7 का ये, 8 का ये और 9 का ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं बेटा हम, राइट? सो दैट विल बी समेशन बाइनोमियल x 15, 0.4 फॉर x इज इक्वल टू 7 to 9। ये तो सबको पता है ना, अभी हमने एमएसटी में ये किया है, राइट? सो इफ आई वांट टू मेक यूज ऑफ टेबल्स, आई राइट इट एज x from 0 to 9 of binomial PDF minus x from 0 to 6. So now we can look at these values from the table. This is 0.9662 minus 0.6098. So answer will be 0.3564. Clear बेटा? अगर हम एग्जैक्ट कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, फाइन। नाउ इफ आई अप्रोक्सीमेट विद नॉर्मल, नॉर्मल कैसे बनेगा? x यहाँ पे 15 इंटू 0.4 दैट इज योर मीन, एंड 15 इंटू 0.4 इंटू 0.6 दैट इज योर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्लियर है?
इसी नॉर्मल से अप्रोक्सीमेट करेंगे. So we have approximated it with x comma, this is 6 comma 1.897. So what we have done, we have approximated our binomial distribution with this normal distribution. Okay beta. So now if you कैलकुलेशन ज्यादा है, यू आर राइट कि नॉर्मल में ज्यादा है, बट आवर एम इज नॉट टू रिड्यूस द कैलकुलेशंस, आवर एम इज टू हैव अ वन टूल व्हिच कैन वर्क फॉर एवरीथिंग. ओके, सो हियर if I want to find out the probability that x is between 7 and 9, so that will be normal के केस में I am looking for probability of, मान लो वो z है, between कहां से कहां तक बताइए, कंटिन्यूटी करेक्शन लगाइए. 7 मतलब 6.5 से स्टार्ट करेंगे, 9 तक जाना है मतलब 9.5 तक जाना है. ठीक है, तो ये z है हमारा. ओके बेटा, तो इसमें जो हमने कल किया है, अब क्या करें, इसमें मैंने टेबल देखना है तो उसके लिए क्या करो, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ पहले. तो मान लो w इज इक्वल टू z माइनस 6/1.897. सो यू विल हैव वैल्यूज कंप्यूट कर लेना, इट इज 0.26 लेस देन w लेस देन 1.85. सो दिस w इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमने कल किया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे निकालते हैं, सीडी. सो दिस इज, समझ आ रहा है बच्चों? So this is probability of w less than 1.85 minus probability of w less than 0.26. Now look from the table of normal distribution. This is 0.69678 minus 0.06026. So answer is 0.3652. So now can you, they are very close, right? Can you see beta? 0.3564, 0.3652. So a good approximation is there, probability. गॉट इट बेटा? आपने कुछ नहीं करना, ये कैलकुलेशन तो सिर्फ मार्क से कर रहे हैं, बट टूल ये बस क्या करना है, आपने बता दिया कि ये कर सकते हैं. यू कैन नॉट डू द अप्रोक्सीमेशन ओनली व्हेन योर p इज वेरी क्लोज टू 0 और 1, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज अप्रोक्सीमेट. क्लियर है ये चीज? लेट मी एक्सप्लेन अगेन जिनको नहीं समझ में आया. व्हाट वाज द सिचुएशन, वी हैड अ नॉर्मल, we had a binomial distribution with 15 trials and probability of success 0.4 and 0.6. Okay, we found what is the probability of number of successes between 7 and 9. वो हमने अपना binomial वाला जो पुराना एनालिसिस है वो लगाया, right? Now I am saying that you can approximate it with the normal distribution. अगर नॉर्मल से अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, उसके बाद नॉर्मल वाली कैलकुलेशंस करोगे, पूरी नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे फॉर लुकिंग एट द टेबल्स. दिस इज द आंसर यू आर गेटिंग. यू कैन सी दैट देयर इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन. You are getting close answers, right? When your n will increase, you will have better approximations. Okay? और मोस्टली जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं उनमें n is large most of the times, so approximation works. चलिए करोगे एक प्रॉब्लम. नो, the probability that, करो बेटा सब लोग, the probability that a patient recovers from a rare blood disease, recovers from a rare blood disease is 0.4 if 100 people are known to have the disease. What is the probability that fewer than 30 survive? What is the probability that fewer than 30 survives? बताओ क्या?
गिवन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में -2.14 दिस एरिया इज 0.0162 फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको ऐसे टेबल से देखना पड़ेगा, यू डोंट हैव टेबल राइट नाउ। कैसे करोगे बेटा इसको फटाफट बताइए। So you have, suppose x is your binomial distribution. ये binomial है, binomial है because you have 100 people, each person can survive or die and independent है वो, right? What happens to one person will not affect what happens to the second person. So you have 100 independent trials. Probability of success remains 0.4. So this is a binomial distribution, right? So x आपका binomial है, z को हम लेते हैं नॉर्मल। तो ये जो आपका यहाँ पे है 100, 0.4 कैन बी अप्रोक्सीमेटेड विद n x, 0.4 into 100 that is 40, square root of 100 into 0.4 into 0.6। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एग्जाम में यू कैन डू इट बाय बाइनोमियल और नॉर्मल, दैट इज योर चॉइस। ओके, सो ये हो गया आपका n x 40, 4.899। यहां तक किसी को डाउट बेटा? आई एम डूइंग दिस अप्रोक्सीमेशन बिकॉज माई p इज वेरी क्लोज टू हाफ, p is 0.4, right? So you can do this approximation. So now what will be the next step? Yeah, you will convert it into standard normal distribution. W is standard normal distribution. उसके लिए मैं क्या करूं? W is equal to z minus 40 over 4.899. Okay, I am looking at what is the probability of, क्या चाहिए मुझे, probability किस चीज की चाहिए बेटा? x fewer than 30 survives, मतलब x less than 30 की probability चाहिए। What will be that? That will be probability of z less than equal to what? 30.5। क्लियर है ना सबको? कंटिन्यूटी करेक्शन। सो दैट विल बी 30.5। देख लो कहां पे कन्वर्ट हो रहा है। सो दैट विल बी -2.14। ओके, that will be probability of w less than is equal to -2.14. This is this area which is 0.0162। क्लियर बेटा? यहां पे लेस देन इक्वल टू लिखना है या नहीं लिखना है? इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस है ना? ये हमारा ये कंटिन्यूअस है ना, ये डिस्क्रीट था फिर कंटिन्यूअस आ गया, उसके बाद आप कंटिन्यूअस में चले। पड़ेगा बेटा, तभी तो अप्रोक्सीमेशन है। नहीं, इक्वल टू से नहीं पड़ेगा क्योंकि जो रेक्टेंगल है वही तो बात बेटा, आपने अप्रोक्सीमेट कर दी। देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, पहले जब आप कर रहे थे, मान लो आप यहां तक का एरिया ले रहे थे, सिर्फ 30, मतलब यू वर एडिंग, मान लो इस केस में मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू 7 चाहिए, ठीक है बेटा? तो इसका मतलब मैं यहां तक का एरिया ले लूं, ठीक है? अब मैंने क्या किया, लेस देन इज इक्वल टू 7, तो ये मेरा 7.5 है ना, राइट? जो एज है, तो यहां तक का इस लाइन का, जब उसके बाद मेरा कंटिन्यूअस केस है तो लाइन का तो एरिया ही नहीं है ना कोई, चाहे इंक्लूड करो चाहे एक्सक्लूड करो। उसके बाद आप इंटीग्रल से एरिया निकाल रहे हो। पहले आपने रेक्टेंगल्स के एरिया का सम किया था, इसलिए इट वाज लाइक रेलिवेंट कि आप वो रेक्टेंगल इंक्लूड कर रहे हो कि नहीं। अब आप इंटीग्रेशन से एरिया निकाल रहे हो, तो एक पॉइंट इंक्लूड कर रहे हो कि एक्सक्लूड कर रहे हो, डजंट मैटर। ठीक है? हाँ जी बेटा, कुछ और कोई पूछो? क्लियर है ये चीज सबको? नहीं यार, अच्छा सॉरी, मैंने गलत किया है। क्या गलत किया मैंने? यहाँ पे ये 30 है ना, लेस देन 30 है, मतलब 30 इंक्लूड नहीं करना, तो कहां तक जाएंगे? 29.5। ठीक है बेटा? क्लियर? इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 30 होता है, यहाँ भी मैटर करता है। तो लेस देन 30 मतलब आप 29, देखो एक मिनट बेटा, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है ना, प्रोबेबिलिटी
क्योंकि वो डिस्क्रीट है. तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इज इक्वल टू 29.5. तो मैंने यहाँ गलत लिखा. So that will be 29.5. ये क्लियर है सबको? ओके बेटा, थैंक यू फॉर टेलिंग. ओके, वन लास्ट प्रॉब्लम, सब लोग खुद करेंगे. अ मल्टीपल चॉइस एन MCQ has 200 questions, each with 4 possible answers, of which only one is correct. What is the probability? What is the probability that, आप लोगों को पता है राइट नाउ यूएस कनाडा में सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन सी हैं? स्टैटिस्टिशियंस की. ओके, सीरियसली दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोग अभी मुझे कहते थे ना हमें जॉब करनी है, ऐश करनी है, सो दिस इज अ वे टू डू दैट ऐश. इफ यू लर्न दिस सब्जेक्ट वेल, you have so many opportunities. आज जाके सर्च करना गूगल पे. Okay, so this is the best time for a statistician to be alive. There is an article. Okay, read that article. What is the probability? Because everybody is using it. Medical science, e-commerce, everybody is using probability and stats to guess कि आगे क्या करें, आगे क्या करें. What will be the next thing? What will be the next thing? So everybody is guessing that, and this is a subject which is telling you the right answers in a logical way. Okay, beta? So everybody, everywhere, people need statisticians. Statisticians मतलब ये वाला this plus programming, which is I think your forte, right? So whosoever knows these two things, the best combination. So what is the probability that sheer, I'm not saying कि मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ जो आप exactly use करोगे, but this is the basics, right? इससे you can learn more जितना आपको चाहिए. But अगर basics clear है, then only you can learn advanced things, right? Sheer guesswork yields from 25 to 30 correct answers for the 80 of the 200 problems about which a student has no knowledge. मतलब जो आप मान लो 3 चैप्टर्स आप छोड़ के चले गए, वहां पे आपने अपना तुक्का लगाया. उस दिन आपका क्विज था तो एक स्टूडेंट नॉट फ्रॉम माय क्लास वाज टेलिंग मी कि मैं सबका बी लगा के आ जाता हूँ क्विज में. तो वो कह रहा था कि आई एम हैप्पी, या कुछ नंबर मिल जाते हैं मुझे बिना पढ़े. सो टेल मी द आंसर. आप बताओगे मुझे. आपको जो वैल्यू चाहिए टेबल की वो मुझसे पूछ लेना. आप लोग करना, आपने करना है. फटाफट करो. 200 टोटल क्वेश्चंस है, ठीक है. उसमें से 80 नहीं आती स्टूडेंट्स को, तो तुक्का जो 80 का मारना है. तो 200 तो हटा ही दो फिगर, राइट. सो n इज योर 80 और 4 ऑप्शंस में कितने करेक्ट है? 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? 1/4. फेलियर क्या है? 3/4. चलो, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर? आई एम लुकिंग फॉर 25 less than x less than 30. This is what I am looking for. X is my binomial. सेम है, कुछ नया नहीं है. बाकी बस कन्वर्जन करो so that you know how to do the calculations. करो बेटा. बाइनोमियल ही यूज करना, हमने नॉर्मल में कन्वर्ट करना.
दिया, किया किसी ने? करनी परसों शायद। आंसर इज 0.1196। ओके बेटा।